Very good morning, everyone. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So, class, in the previous video, we have discussed about salts, in which we have discussed about the preparation of salts. Now, there are certain things which were left, like how do the preparation of insoluble salts take place. So, let us talk about this. Okay. चलिए बात करते हैं. There is first method by which the insoluble salts are made. Like when metal is directly reacting with non-metal and it is given salt by the direct combination. Like lead is a metal and which is reacting with sulfur. By the direct combination, there is one salt is preparing lead sulfide. Lead sulfide, which is an insoluble salt. तो how do the insoluble salts take place? By the direct combination. मेटल्स जो है वो नॉन मेटल के साथ डायरेक्टली कंबाइन होकर के एक सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल लेड सल्फाइड. ठीक है. नेक्स्ट, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिडिक ऑक्साइड विद बेसिक ऑक्साइड. ठीक है. लाइक अगर आपने बात की, आपने एक एसिडिक ऑक्साइड लिया सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. दिस इज एसिडिक ऑक्साइड which is reacting with basic oxide, मतलब calcium oxide. Now here you can see this calcium oxide is a basic oxide and sulfur dioxide is a acidic oxide. When they are reacting together, they are forming calcium sulfide. ठीक है. Calcium sulfide, which is a insoluble salt. When sulfur dioxide is reacting, they are mixed together and they are heated together, they are forming an insoluble salt which is known as the calcium sulfide. ठीक है. So second method क्या था? By the combination of acidic oxide आपका किससे रिएक्ट हुआ? बेसिक ऑक्साइड से, और उसने क्या बनाया? एक insoluble salt. नेक्स्ट मेथड है आपका by the precipitation reaction. By the precipitation reaction. ठीक, समझ लीजिए इसको जरा. When in soluble salt, it is soluble salt. When a soluble salt is reacting with an acid, when a soluble salt, barium आपका जो chloride है, it is a soluble salt. When it is reacting with sulfuric acid, it is forming barium sulfate as a precipitate, है ना? As a precipitate, and it is forming barium sulfate as a insoluble salt, which is a insoluble salt. And HCl is a byproduct of this reaction. Here you can see this कि आपका ये precipitation बचा है, आपका precipitate हुआ, इसलिए इसको precipitation reaction भी कहते हैं. ठीक. और एक रिएक्शन देख लीजिएगा. When sodium sulfate is getting reacted with barium chloride, it is forming barium sulfate and sodium chloride. Barium sulfate and sodium chloride. ठीक है. ये आप प्रोसेस अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू मस्ट विल ऑब्जर्व दिस थिंग कि यहाँ पे एक और रिएक्शन आप पता चल रहा होगा, वो है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ पे सोडियम जो है वो बेरियम से डिस्प्लेस कर दिया गया और बेरियम जो है सोडियम से डिस्प्लेस कर दिया. तो ये डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है. डिस्प्लेसमेंट मतलब कि दोनों आपस में डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है जो कि बाइप्रोडक्ट की फॉर्म में बेरियम सल्फेट आधा प्रेसिपिटेट बचा रहा है. ठीक है. तो दिस इज आल्सो ट्रिक टू जस्ट फॉर्म या प्रिपेयर insoluble salts. चलिए. Now next thing we'll talk about the laboratory preparation of some salts which was left. Chaliye, let us talk about this. How do this take place? Laboratory preparation of some salts. इनसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं बेटा, है ना? In which the first one is given iron chloride, iron trichloride.
पहला इसकी प्रिपरेशन आती है आयरन ट्राइक्लोराइड, अगर इसमें दिया हुआ है हाउ डू दिस प्रिपेयर। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसके लिए डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ, आपकी डायग्राम बुक में है, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली चीज है कि पहला ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो सॉल्ट है, ये सिंथेसिस से प्रोसेस होता है ना, सिंथेसिस से। और वी कैन सी दिस आल्सो अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा, आयरन मतलब फेरस क्लोराइड, ट्राई है इसलिए FeCl3, ठीक है। Powdered iron is taken in a combustion tube and dry chlorine gas obtained by passing the gas through the concentrated sulfuric acid is passed through the combustion tube. The air inside the apparatus is expelled. The iron turns red hot since the reaction is exothermic. Now external heating is suspended. Iron trichloride is formed, which volatilizes the contents in the receiver as brown scale. समझिएगा, iron, which is that means ferrous, is heated in the presence of chlorine gas and forming a ferrous chloride, ठीक है। और इस रिएक्शन में ये आयरन रेड हॉट हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि ये रिएक्शन आपकी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिंपली इनको क्या किया गया है, पाउडर्ड आयरन को कम्बस्शन ट्यूब में लिया गया और उसके ऊपर से क्लोरीन गैस को क्या किया गया, गुजारा गया। वहां पे एयर को पहले सर्व कर दिया गया था, एयर नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। टू द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज पास्ड थ्रू द कम्बस्शन ट्यूब, द एयर इनसाइड द apparatus is expelled, उसको निकाल दिया गया। एंड आफ्टर दिस आयरन स्टार्ट turning red hot since the reaction is exothermic. Now external heating is suspended. तो बाहर से इसको बाद में रिएक्शन करने हीट देना बंद कर दिया गया, क्योंकि जब इसको प्रोसेस कराने के लिए हीट दिया गया, ठीक है, आयरन को जैसे ही क्लोरीन के साथ में क्या किया गया, कंबस्ट करना स्टार्ट किया गया। आफ्टर द सम टाइम इट विल ऑलरेडी हीटेड इटसेल्फ, रिएक्शन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, तो उस कंबस्टन को रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेस होगी वो खुद से होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो हीट एनर्जी उससे, और उससे क्या बनेगा, फेरस ट्राइक्लोराइड आपका फॉर्म हो जाएगा इन द कंबस्टन ट्यूब, ठीक है। Okay, now one more thing is given, anhydrous ferrous trichloride cannot produce ferrous chloride। जैसे anhydrous chloride का क्या मतलब है यहाँ पे, जिसके साथ आपका क्या होगा, वाटर के कंपोनेंट हो FeCl3 के साथ में, और क्या वाटर मॉलिक्यूल 100 कितने हैं, 6s2 अगर है, अगर इसको नॉर्मली हीट करेंगे तो ये फेरस क्लोराइड में नहीं कन्वर्ट होगा, इट विल फॉर्म Fe2O3 and H2O and HCl. It is not balanced reaction. I am only writing the scale reaction की जो प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे वो क्या बन जाएंगे, ठीक है। सो फेरस क्लोराइड की अगर हम बात करें जो एनहाइड्रस फॉर्म में है, ठीक है, तो एनहाइड्रस फॉर्म के जनरली बहुत सारे ऐसे भी अगर आप सॉल्ट्स देखोगे, उन सॉल्ट्स को हम हीट करने नॉर्मली तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, नॉर्मल सॉल्ट्स में। लेकिन एनहाइड्रस फेरस क्लोराइड को अगर हमने हीट किया तो इट विल नॉट कन्वर्ट टू द फेरस क्लोराइड सॉल्ट, वो आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर एंड HCl के ट्रेसेस उससे मिलेंगे बाय दिस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जिंक सल्फेट एंड आयरन डाइसल्फेट। हाउ डू दे गेट प्रिपेयर्ड। चलिए फिर बात कर लेते हैं जिंक सल्फेट कैसे बनता है, जरा देख लेते हैं। जिंक सल्फेट के आपने कॉम्बिनेशन में इस में एक चीज पढ़ी होगी in your previous classes also, कि when zinc is reacting with sulfuric acid or any acids, जो भी जिंक के ग्रेनुलर्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं इसके साथ में, तो there is one salt formed zinc sulfate and there is one gas release H2 हाइड्रोजन गैस। ये आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में ये चीज पढ़ी है, जरा समझ लेते हैं इसको। बेसिकली इसको कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या, पहला स्टेप है टेक डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड 1 वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड 5 वॉल्यूम ऑफ वाटर। डाइल्यूटेड का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कैसा फॉर्म लेना है आपको, एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। मतलब अगर 1 वॉल्यूम आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है,
तो 5 वॉल्यूम ऑफ वाटर होना चाहिए, इतना डाइल्यूटेड फॉर्म होना चाहिए उस एसिड को आपको लेना है। ठीक, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, टेक द डाइल्यूटेड एसिड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इन अ बीकर एंड हीट इट ऑन अ वायर गेज। वायर गेज आपने देखा होगा शायद से, और उस बीकर में लेना है और उसको वायर गेज के ऊपर क्या करना है, स्टार्ट करना है हीट करना, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐड सम ग्रैन्युलर जिंक स्पीसीज, और इसमें आपको कुछ जिंक की ग्रैन्युल्स क्या करनी है, ये तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जिंक के ग्रैन्युल्स को आपको मिक्स कर देना, ठीक है, a little at a time with a constant stirring. Effervescence take place because of the liberation of hydrogen gas. इसकी वजह से effervescence reduce होगी, ठीक। And drink till the metal settles at the base of the beaker. When effervescence stops, it indicates that the acid has been used up. जब ये जो बुदबुदाहट या effervescence जब आपका प्रोड्यूस हो रही है, ये बंद हो जाएगी, इसका मतलब कि पूरा एसिड इस्तेमाल हो गया है, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन हो चुकी है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। Next step, collect the solution of in a china dish and evaporate the solution to get crystals. अब इससे जैसे ये काम हो गया, प्रोसेस हो गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई, उसके बाद इसको चाइना डिश में लीजिए और उसको क्या कर लीजिए, वेपराइज कर लीजिए, ताकि जो आपका जो सॉल्ट आया है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स क्या मिल जाए, आपको मिल जाए, ठीक सल्फेट, ठीक है। तो क्या करना है, पहला चीज तो डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड लेनी है, उसको वायर गेज पे रख करके हीट करना स्टार्ट करना है, और वो किस कॉम्बिनेशन में लेनी है, 1 वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड 5 वॉल्यूम ऑफ वाटर के कॉम्बिनेशन में लेनी है। एंड आफ्टर सम टाइम आपको जिंक के ग्रैन्युल्स को धीरे धीरे करके मिलाते चले जाना है उसमें, और उसको धीरे धीरे स्टिर करते चले जाना है, और आप ये ऑब्जर्व करोगे जैसे ही इसका ये वो होगा, जब हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होना स्टार्ट करेगी तो वो क्या करेगी, एफरसेंस प्रोड्यूस करेगी, और जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि उसमें अभी भी एसिड है, और जैसे ही एफरसेंस बंद हो गई, हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होना बंद हो गया, तो इसका मतलब कि ये पता चलेगा कि पूरी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हो चुका है ना। नाउ द कंपोनेंट जो आपका सॉल्ट था वो प्रिपेयर हो गया, अब उसको एक चाइना डिश पे लीजिए, उसको वेपराइज कर लीजिए, और वेपराइजेशन के बाद आप क्या करेंगे, वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिंक सल्फेट। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ। नेक्स्ट वन मोर थिंग इज देयर, आयरन सल्फेट व्हिच इज आल्सो नोन एज द ग्रीन विट्रियल। ग्रीन विट्रियल जिसको हम कहते हैं, आयरन सल्फेट और ग्रीन विट्रियल, चलो समझ लेते हैं इसको। ग्रीन विट्रियल क्या है? Iron sulfate is prepared by displacement action of an acid on reactive metal. यहाँ पे भी रिएक्शन आपकी क्या है, सेम कॉम्बिनेशन की, फर्क क्या आपने देखा, ये आयरन से रिएक्शन हो रहा है, वहां जिंक से हुआ था, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी है, ठीक, सेम कॉन्सेप्ट आपका वही है। मेथड क्या है समझते हैं। And insoluble salts can be prepared by mixing the solution of 2 appropriate salts. Filter the hot, जैसे कि आपका ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कराइए जैसे अभी आपने जिंक की सीखी थी, जिंक सल्फेट वाला कराया था, तो आपको इसी तरीके से कराएंगे, इसके बाद सेम प्रोसेस आपका इस तरीके से ग्रीन विट्रियल निकलता है, सिंपल आपका प्रोसेस वही। Filter the hot solution form and allow the filtrate and evaporate at the room temperature. Pale green crystals of hydrated sulfate, जैसे कि अपने उसमें आया हुआ है, आपका जिंक सल्फेट का था, इसमें आएगा तो ग्रीन कलर का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म आएगा, which is known as the green vitriol, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स बेटा एक बार आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, और प्लीज डिस्कस इन द क्लास। अगर आपको लाइव क्लासेस में अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका नेक्स्ट टॉपिक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 8th से पढ़ते आ रहे हो चीज। न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच एन एसिड इज गेटिंग रिएक्टेड विद द बेसिस एंड इट इज फॉर्मिंग सॉल्ट, ठीक है। और वो सॉल्ट बन रहा है जिसमें दोनों की एसिडिटी और बेसिसिटी क्या हो रही है, न्यूट्रलाइज हो जा रही है, इसीलिए दे आर नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Okay, that's it for in this chapter. Now here the chapter salts, acid, base and salt is done. Now we'll be moving to the next chapter. तो आज के लिए इतना ही है। प्लीज इससे आप ढंग से जितने भी इसके वो टॉपिक्स हैं एक बार पढ़ लीजिए, और इससे रिलेटेड डाउट जो है आपके लाइव सेशन में क्लियर करिए, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप अपने ग्रुप पे भी भेज सकते हैं आपके जो भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास।